Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Safety and First Aid. Learning objectives. The importance of first aid, various situations where first aid is necessary, safety measures in emergency situations. Do you remember the last time when you or your friend were hurt? Discuss in class how could it have been avoided? How can most accidents be avoided? हम किस तरह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स को, अपने आसपास होने वाले एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे. So let's get started. With the advancement of science, people are using several electrical gadgets to make their life more comfortable. Fire, electricity, sharp objects such as knife are very useful to us but can be dangerous if not handled carefully. Accidents may occur at any place or at any time and cause physical injury. Most accidents occur due to carelessness. We can avoid accidents if we observe simple safety rules and be more careful and alert. देखिए एक्सीडेंट्स कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकते हैं, ठीक है. तो एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम थोड़े से केयरफुल हो. और ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं. जैसे कि अब इतना एडवांसमेंट हो गया है साइज़ में, हमने अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना लिया है. लाइक हमारे पास आजकल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, राइट. जैसे हम फायर का यूज़ करते हैं या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं. ये हमारे लिए यूज़फुल तो हैं ही, लेकिन डेंजरस भी हैं अगर हमने इन्हें केयरफुली हैंडल नहीं किया तो. Fact file: helmets reduce fatal and serious injuries by up to 45%. देखिए जब भी हम टू व्हीलर में हेलमेट्स पहनते हैं ना, तो हेलमेट जो है वो 45% तक सीरियस इंजरीज को कम कर देते हैं. First aid. First aid is the first and immediate medical help given to an injured person before a doctor arrives. A person who has met with an accident needs attention immediately. First aid prevents the condition of the victim from getting worse. फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है कि पहली हेल्प जो किसी इंजर्ड पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के अराइवल से पहले. कट्स एंड वुंड्स. Cuts and wounds expose body tissues to the environment, so these should be given proper attention. Hygiene should be maintained while giving first aid to a wounded person, as germs can enter in the body easily from a cut or wound. Wash your hands with soap and water to remove germs. If the cut is small, clean it with soap and plenty of water. Dry it and apply an antiseptic cream or put a bandage over the wound. Deep cuts should first be washed with soap and water. To stop the bleeding, take some cotton wool or make a thick paste of sterile gauze and press it over the wound. Then cover the wound with a bandage to prevent germs from getting into the wound and to stop the bleeding. अब देखिए आपके जैसे कई बार बॉडी में कट्स एंड वुंड्स हो जाते हैं, है ना. कट्स आपके क्या हो सकते हैं, माइनर भी हो सकता है या फिर डीप कट भी हो सकता है. तो कोई भी कट या वुंड है तो इसमें क्या होता है, जर्म्स जो हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, राइट. बहुत ईजिली कट और उनके ज़रिए कर लेते हैं. तो अगर कट जो है स्मॉल है तो आपको उसको सोप एंड वाटर से वॉश करना है, राइट. फिर आपको क्या करना है, उसको ड्राई करना है, उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी एंड बैंडेज भी आप उस पर लगा सकते हैं. अगर डीप कट है तो सबसे पहले उसको वॉश करना है वाटर से एंड सोप के साथ. इसके बाद ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए कुछ कॉटन वूल आपको लेना है या फिर आप एक थिक पैड बना सकते हैं स्टेराइल गॉज का, एंड उसको वुंड पे आपको प्रेस करना है. उसके बाद वुंड को आपको बैंडेज से कवर करना है जिससे कि जर्म्स उसमें ना एंटर कर सकें एंड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए. In case of excessive bleeding, tie a strip of cloth tightly just above the wound. The strip of cloth is called tourniquet. This helps to slow down bleeding. A very deep wound may require stitches. If a wound or a cut is caused by a rusty metallic object, there are chances of a disease called tetanus. An anti-tetanus injection helps prevent the disease. अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करना है, एक क्लोथ का स्ट्रिप लेना, उसको टाइटली वुंड के ऊपर बांध देना है, राइट. एंड इससे क्या होगा कि जो ब्लीडिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगी. और कई बार क्या होता है कि बहुत गहरा कट होता है तो उसमें स्टिचेस की रिक्वायरमेंट होती है. और अगर किसी रस्टी मेटालिक ऑब्जेक्ट से अगर आपको कट लग गया है तो आपको क्या करना है, टेटनस का इंजेक्शन लेना है. नोज ब्लीड्स. नोज ब्लीड्स आर कॉमन ड्यूरिंग द हॉट समर डेज. देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू व्हेन दिस हैपन. Pinch the nose between the thumb and the forefinger for about 10 minutes and breathe through the mouth. This will apply pressure on the bleeding portion. The bleeding will stop. नोज ब्लेड्स आपका कॉमन है, समझ में बहुत लोगों को हो जाती है. तो आपको क्या करना है, इसमें आप अपनी जो नॉस्ट्रल्स हैं आपको वो इस तरह से आपको पिंच करने हैं फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड माउथ के थ्रू आपको ब्रीथ करना है. इससे क्या होगा कि प्रेशर होगा ब्लीडिंग पोर्शन पे एंड ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी. बट द हैंड शुड नॉट बी रिमूव्ड अंटिल अ blood clot has formed. This normally takes 7 to 8 minutes. Put an ice pack
Ice in a piece of cloth or a wet cloth on the nose and on the back of the patient's neck. Ask the patient not to blow the nose for a few hours even after the bleeding has stopped. In case of heavy bleeding, consult a doctor immediately. इसके बाद आपको उसमें आइस पैक लगाना है या फिर आप वेट क्लॉथ लगा सकते हैं नोज पे, राइट. एंड पेशेंट को कहना है कि काफ़ी घंटे तक यानी कुछ घंटे तक उसको नोज ब्लो नहीं करनी है, चाहे आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो सके. और अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस. Fractures and sprains. A fracture is a crack or a break in the bone. An injury to a muscle near a joint is called a sprain. It occurs when a part of your body turns or gets twisted and swells up. Ice packs can be used to bring down the swelling. The joint should not be moved until it heals. This may take a few days. An elastic bandage wrapped around the joint gives support to the joint and prevents movement. In case of a fracture, it must be ensured that the fractured part should not be moved. For example, if the fracture is in the hand, a cloth sling can be used to prevent movement. The victim must be taken to the hospital immediately. फ्रैक्चर आपका एक क्रैक होता है आपका या ब्रेक होता है बोन में, राइट. अगर आपका कोई इंजरी हो जाती है मसल में, जॉइंट के पास, उसे हम कहते हैं स्प्रेन. तो ये कब होता है, जैसे आपकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो ट्विस्ट हो जाता है और स्वेलअप हो जाता है. तो आइस पैक काफ़ी यूजफुल रहता है. इससे क्या होता है कि स्वेलिंग थोड़ा सा आपका कम हो जाती है. जॉइंट को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है जब तक कि ये हील नहीं होता है. इसमें कुछ दिन लग जाते हैं. तो एक इलास्टिक बैंडेज होता है, जैसे वो जॉइंट के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि जॉइंट को सपोर्ट मिलता है एंड मूवमेंट प्रिवेंट हो जाता है. अगर फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर्ड पार्ट को मूव नहीं करना है. जैसे कि अगर आपके हैंड में तो एक क्लोथ स्लिंग आता है जिसको लगाना है. इससे क्या होगा कि जो मूवमेंट है हाथ का वो नहीं हो पाएगा और विक्टिम को आपको तुरंत ही जो है हॉस्पिटल लेके जाना है. फैक्ट फाइल. अ फ्रैक्चर्ड बोन कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज. अगर कोई भी बोन फ्रैक्चर्ड है तो एक्सरे की हेल्प से वो तुरंत पता चल जाता है. बर्न्स. वन कैन गेट बर्न्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, fire, steam, boiling water, firecrackers, electric points, and chemicals like acids. Only very minor burns can be treated at home. A minor burn causes redness of the skin. No blisters are formed. The first thing to do is to immediately wash the area with lots of cold water for several minutes. If the pain continues, apply a damp cloth over the burn. In more severe burns, the skin becomes red and blisters form. Immerse the burn part in cold water. देखिए, बर्न आपके किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से हो सकता है, जैसे कि स्टीम है या बॉइलिंग वाटर या फायर है, कुछ भी हॉट, राइट. तो आपके माइनर बर्न जो है उन्हें हम घर में ट्रीट कर सकते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई भी माइनर बर्न है, आपको वॉश करना है उस एरिया को ठंडे पानी से कुछ मिनट तक, ओके. अगर पेन तभी भी होता है तो एक डैम्प क्लोथ यानी गीला कपड़ा जो है आपको बर्न के ऊपर रखना है. और अगर सीवियर बर्न है तो स्किन एकदम रेड हो जाती है एंड देन ब्लिस्टर बन जाते हैं. तो बर्न पार्ट को आपको सबसे पहले कोल्ड वाटर में इमर्ज करना है. Do not allow the blisters to break, otherwise they can get infected. If the blisters do break, wash them with soap and water and cover them with a loose bandage. In very severe burns, the patient must be rushed to the hospital. Give the patient plenty of water to drink. For chemical burns such as with an acid, immediately wash the affected area with plenty of cold running water. अगर ब्लिस्टर हो गए हैं तो मेक श्योर कि वो आपके ब्रेक ना हो. अगर ब्रेक हो गए हैं तो उसको सोप एंड वाटर से आपको वॉश करना है और लूज बैंडेज से उसको कवर करना है. और बहुत ही ज़्यादा सीवियर बर्न है तो पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना है. पॉइजनिंग. नेफ्थलीन balls, nail polish, detergents and paint if swallowed are poisonous and often deadly. Such things must be kept out of the reach of the little children. Fruits and vegetables must be washed well with water before eating. They may have been sprayed with poisonous chemicals to kill pests. अब नेफ्थलीन बॉल्स जो हम कपड़ों में डालते हैं, गर्म कपड़ों में, या नेल पॉलिश है, डिटर्जेंट है, पेंट, अगर सॉलो कर लेता है कोई तो काफ़ी पॉइजनस होता है. तो इसीलिए इनको छोटे बच्चों की दूर रखना चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी खाने से पहले अच्छे से धोना चाहिए क्योंकि उनमें पॉइजनस केमिकल्स और स्प्रे किए रहते हैं. फैक्ट फाइल. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोफोबिया इज अफ्रेड ऑफ वाटर. हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है आपका, वो पर्सन जिसे वाटर से डर लगता है. फॉर एनिमल बाइट्स. इफ समवन इज स्टंग बाय अ वास्प और बी, रिमूव द स्टिंग फर्स्ट, पुट आइस क्यूब्स ऑन द अफेक्टेड एरिया एंड अप्लाई सम एंटीसेप्टिक क्रीम. A person bitten by a poisonous snake must be rushed to the hospital. A tight bandage can be tied around the wound to slow down the spread of poison in the body. Dogs, wolves, bats and cats sometimes carry in their bodies a virus of a very dangerous disease called rabies. When such an animal bites someone, the virus enters the victim's body through the animal's saliva. अब देखिए, एनिमल कोई बाइट कर लेता है, जैसे कि स्टिंग
कर लेते हैं आपके वास पे अभी, तो सबसे पहले स्टिंग को निकालना है, फिर अफेक्टेड एरिया में आइस क्यूब्स रखने हैं और कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है। अगर किसी पॉइजनस स्नेक ने बाइट कर लिया तो तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना है और एक बैंडेज को टाइटली वुंड से ऊपर बांध देना, जिससे कि जो पॉइजन है वो बॉडी में स्प्रेड ना हो। और आपको पता है आपके डॉग्स या वुल्व्स या बैट्स या कैट्स, इनमें एक वायरस होता है रेबीज। अगर ये किसी को काट लेते हैं तो वायरस जो है वो बॉडी में एंटर कर जाता है एनिमल के सलाइवा के थ्रू। In the case of an animal bite, wash the wound with water to remove the saliva and apply an antiseptic. Apply an antiseptic on the wound in order to prevent infection. Take the victim to a doctor immediately. The doctor may give anti-rabies injection. अगर कोई एनिमल इन केस बाइट कर जाता है तो सबसे पहले उनको वाटर से अच्छे से धोना है, राइट, जिससे कि सलाइवा रिमूव हो सके। फिर एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है और इसके बाद तुरंत ही विक्टिम को डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो डॉक्टर आपको एंटी रेबीज इंजेक्शन देंगे। फायर फाइटिंग. Fire spreads very fast. It is important to control it quickly. We can control all kinds of fires either by reducing the temperature of the burning substance or by cutting off the air supply. If paper or wood or cloth is on fire, it can be extinguished by throwing water or sand or mud over it. If fire is caused due to an electric short circuit or petrol, it can be controlled by throwing sand or mud over it. Never put out such fires using water. Fires can be controlled by using special devices called fire extinguishers. There are many types of extinguisher. If they are available, they should be used instead of water or sand or mud. आपकी आग जो है बहुत तेज़ी से फैलती है, तो इसको क्विकली हमें कंट्रोल करना चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो जो बर्निंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं या फिर एयर की सप्लाई को कट ऑफ कर सकते हैं। देखिए, अगर पेपर या वुड या क्लॉथ इनमें आग लगी है तो इसको पानी या सैंड या मड अगर हम इसमें डालते हैं तो बुझ जाता है। लेकिन अगर आग लगी किसी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर पेट्रोल की वजह से, तो इसमें हमें कैसे कंट्रोल करना है, या तो उसमें सैंड डालना है या फिर मड। ऐसी आग को आग से पानी से नहीं बुझाना है। फायर को कंट्रोल किया जाता है, स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जिन्हें कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स। अब आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स भी जो काफ़ी तरह के होते हैं, तो इनको यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वाटर और सैंड और मड। In case there is a fire in a building, inform the nearest fire station. If a person's clothes catch fire, throw water to put out the fire. If water is not available, wrap the person in a blanket, coat or a curtain to put out the fire. Remove the cloth as soon as the fire is extinguished. अगर बिल्डिंग में फायर लग गई तो सबसे पहले फायर स्टेशन को कॉल करें, और किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग गई है तो पानी डालें, और अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो कोई ब्लैंकेट रैप कर दें या कोट या कर्टेन रैप कर दें। ओके, एंड जो क्लोथ है उनको जितनी जैसे ही आग बुझती है उनको जितनी जल्दी हो सके कपड़ों को निकालें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू बी काम व्हेनेवर देयर इज एन एक्सीडेंट। कॉल फॉर हेल्प एंड ट्राई टू डू योर बेस्ट विद द इंज्योर्ड पर्सन। सबसे पहली चीज़, कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहले यू शुड मेंटेन काम। उसके बाद किसी को भी हेल्प के लिए बुलाएं एंड अपना बेस्ट देने की कोशिश करें इंज्योर्ड पर्सन को। समरी: accidents can take place at any place at any time. We can avoid accidents by being careful and alert. In case of an accident, first aid should be given to the victim. A wound should be cleaned with soap and water and the bleeding should be stopped. In case of a fracture, it must be ensured that the fractured part of the body should not be moved. Minor burns can be treated by washing the affected part in cold running water. देखिए, एक्सीडेंट्स आपको पता है कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा केयरफुल और थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इंजर्ड पर्सन को आप सबसे पहले फर्स्ट एड दें। वुंड अगर है तो उसको पानी एंड सोप से धोएं जिससे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। फ्रैक्चर के केस में क्या करना है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि जो फ्रैक्चर्ड पार्ट है उसको मूव नहीं करना है। एंड माइनर बर्न्स को हम ट्रीट कर सकते हैं घर पे ही। कैसे? उसमें आपको कोल्ड रनिंग वाटर का उसमें यूज़ करना है। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप आप ये सारे ही सेफ्टी रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।